ट्रांसलेशन कर सकती हैं आप? 6 प्रकार के वाक्यों में चेंज करना है इंग्लिश में, ठीक है। मैं पानी पीती हूँ। I drink water. I do not drink water. Do I drink water? Why do I drink water? Do I not drink water? Why do I not drink water? गुड, हैव से। यस श्रेया, स्टैंड अप। मैं खाना खा रही हूँ, ये कौन सा टेंस है? Present continuous tense. कैन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? Yes. यस। I am eating the food. I am not eating the food. Am I eating the food? Why am I eating the food? Am I not eating the food? Why am I not eating? गुड, हैव से। मैं पत्र लिख चुकी हूँ, ये कौन सा टेंस है? Present perfect tense. इसकी सहायक क्रिया क्या है? Has, have. ट्रांसलेशन कर सकती हैं 6 प्रकार में चेंज करके? यस। I have written a letter. I have not written a letter. Have I written a letter? Why have I written a letter? I have not written a letter. Why I am not written a letter? गुड, हैव से। प्रशांत, स्टैंड अप। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, यह कौन सा टेंस है? Present perfect continuous. इसकी सहायक क्रिया क्या है? Had been, have been. ट्रांसलेशन करिए 6 प्रकार में। I have been reading the book this morning. I have not been reading the book since morning. Have I been reading the book since morning? Why have I been reading the book since morning? Have I not been reading the book since morning? Why have I been reading the book since morning? गुड, हैव से। हर्षित, स्टैंड अप। वह स्कूल गया, ये कौन सा टेंस है? Past indefinite tense. सहायक क्रिया क्या है? Did. ट्रांसलेशन कर सकते हैं? करिए 6 प्रकार में। He went to school. He did not go to school. Did he go to school? Why did he go to school? Did he not go to school? Why did he not go to school? गुड गुड, हैव। यस हिमांशु, स्टैंड अप। मैं क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा टेंस है? ट्रांसलेशन करिए 6 प्रकार में। I was playing the cricket. I was not playing the cricket. Were I playing the cricket? Why were I playing the cricket? Were I not playing the cricket? Why were I not playing the cricket? गुड, हैव से। यस सूरज, स्टैंड अप। माँ खाना पका चुकी थी, यह कौन सा टेंस है? Past perfect tense. पास्ट पर। इसकी सहायक क्रिया क्या है? Had. ट्रांसलेशन कर सकते हैं 6 प्रकार में। यस। Mother had cooked the food. Mother had not cooked the food. Had mother cooked the food? Had mother not cooked the food? Why had mother cooked the food? Why had mother not cooked the food? गुड, हैव से। थैंक यू। आज 7 मई 2026 को पठन पाठन के बाद बच्चों का ओरल टेस्ट लिया जा रहा है। ये क्लास 6 के बच्चे हैं। आयुष, स्टैंड अप। Yes, sir. व्हाट इज सेंटेंस? A group of words that make complete sense. ओके, मैक्स कंप्लीट सेंट कार्ड सेंटेंस। ओके, हैव से। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? So sentence is वाक्य. ओके, हैव से। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस? There are 6 types of sentence: exclamative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, declarative sentence, negative sentence, and affirmative sentence. वंस अगेन रिकॉल। Sir, interrogative sentence, imperative sentence, declarative sentence, affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. ओके, हैव से। नेक्स्ट खुशी, यस स्टैंड अप। हाउ मेनी टाइप ऑफ नीड सेंटेंस फॉर ट्रांसलेशन? There are 6 types: Yes. simple sentence, negative sentence, interrogative का begin, interrogative का middle, interrogative as negative का begin, interrogative as negative का middle. गुड, हैव से। यस नेक्स्ट हर्षित,
हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस? So there are two type of tense. Past tense, present tense, future tense. भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. ठीक है से. एंड व्हाट इज टेंस? यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Arush. हाँ, व्हाट इज टेंस? Tense is form of verb which show the time of action. काल उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है. हाँ, टेंस सो टाइम ऑफ एक्शन है. ओके, हैव सीट. टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन. समय के मुताबिक जो कार्य हो रहा है उसके अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन करते हैं उसे हम टेंस कहते हैं. ओके. एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ईच टेंस? यस वीरा. So there are 12 type of each tense. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. गुड, हैव से. क्लास 7 के हैं जो इनका भी उसी क्रम में ओरल टेस्ट होना है. तो सबसे पहले मैं पूछूंगा व्हाट इज आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ड एंड रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अंशिका, सरोज. यस. सर जी, सीधी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. यस. इसका हेल्पिंग वर्ब है सो डू डज. और इसका रूल है सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है. इसके बदले यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं. यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं. रूल सेकेंड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. हैव सीट. नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर क्या नाम से रूल्स आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अनुराग, सरोज. यस सर. यस. जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ. जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. इसकी सहायक क्रिया इज एम आर. रूल, जिस हिंदी वाक्य सभी हिंदी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं. गुड, हैव से. What is the identity word, helping verb and rule of present perfect tense? श्रेया. जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब हैज है. रूल, सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म जुड़ता है उसमें लगता है. गुड, हैव से. एंड यस बेटा, संध्या, स्टैंड अप. व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सर इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हो आदि आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा समय भी दिया होता है. इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन और इज है. सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. एंड टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं. गुड है. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? यस बेटा, इसका सर,
में ता, था, थी, थे, थे, या, ई, ए, आए। इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड है और इसका रूल है सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। उसके बदले में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। एंड निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो वह सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस पायल स्टैंडर्ड। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। क्रिया के आई फ्रॉम में आईएनजी जुड़ जाता है। ओके, व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? यस गौरव। सर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है रूल। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, इसकी सहायक क्रिया है हैड। ओके, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? आयुष। यस। सर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रूल है। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सीएस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। और इसमें समय भी जुड़ा रहता है। नहीं तो पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान सेम है, लेकिन अंतर क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय जुड़ा होता है, यही अंतर है। और इसकी सहायक क्रिया चेंज रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। चलिए, व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? यस पीयूष। अंत में गा गी के आए उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसका हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, रूल। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक। एंड इसी क्रम में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कौन बताएंगे? विराट। यस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, होगा, रहे होंगे आए उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल भी, शैल भी। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसी क्रम में नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? यस शिवम कुमार। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकी होगी, चुका होगे, चुके होंगे आदि शब्द आए उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव, शैल हैव, रूल। सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। गुड। नेक्स्ट इन दिस सीरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसी क्रम में बताना है। यस अंशिका। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि आए तथा समय भी जुड़ा हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव बीन और शैल हैव बीन। इसका रूल
समय से सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ जाता है। निश्चित समय के लिए since, अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग होता है। गुड गुड गुड, थैंक यू।